بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير.
يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये पिछली चला रहा बस ये भी चला दो ये भी। अस्सलाम वालेकुम। लोग थके थके लग रहे हैं। सबसे पहले तो जी आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने आज़ादी के लम्हात में से कुछ टाइम मेरे लिए निकाला। बड़े अरसे बाद आज़ादी दोबारा मिली। नहीं मतलब ये फॉर्मल बात नहीं है, बस ठीक है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। 600 बैठे। मैंने बार बार आपसे कहा कि जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में जब भी मैं कोई बात आपके सामने रखता हूँ तो मैं अपने आप को अज़्यूम करता हूँ कि मैं आपकी एज में आ गया हूँ। वैसे तो ये बहुत अरसा पुरानी बात है, लेकिन इस एज में ये सब कुछ जानते बूझते कि आपके साथ किस तरह की बातें होनी हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक आने की हिम्मत की है तो इस उम्र में, इस दौर में, इस दुनिया की चकाचौंध में ये सब कुछ अगर आप रेजिस्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसका अल्लाह करे मैं कोई अच्छी बात कर सकूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। अल्लाह ताला मुझे भी उसका हमेशा की ज़िंदगी में कोई रिवॉर्ड दे। ये आसान नहीं है, तो अल्लाह ही इसका अजर आपको दे सकता है। और मतलब मेरे पास डेफिनेटली आपका थैंक्स करने के लिए, आपका थैंक्स इसलिए कि अगर आप मेरी चंद एक बातें सुन लेंगे तो अल्लाह करे मुझे भी उसका अजर मिल जाए। सबसे पहले तो एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि आखिर मैंने आपको क्यों इस वक्त इनवाइट किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें ये है कि मेरे साथ मेजॉरिटी में आप में से जो लोग बैठे हुए हैं, एक अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1.5-2 साल अरसा मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का आपने गुजारा है, जो हज़रात ने अगर F1 से अगर शुरू किया होगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये हमारी आखिरी मुलाकातों में से एक मुलाकात है। इसके बाद अल्लाह ना करे कि कभी किसी दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक दूसरे से किसी मुलाकात की ज़रूरत पेश आए। तो जज्बात अपनी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जो सेंटेंस बोला है ये मैंने तोल के बोला है। तो अल्लाह ना करे कि हमें किसी दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा कभी मिलने की ज़रूरत पेश आए। उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होने की वजह से मेरी ये ऑब्लिगेशन है कि अब आपने एक प्रोफेशनल लाइफ में एक कदम रखना है अपना। तो उस प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत से डिफरेंट नेचर के लोग भी नज़र आएंगे, माहौल भी डिफरेंट नज़र आएगा। वो डेफिनेटली मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना शायद आपको इस वक्त समझ आए, लेकिन एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट दुनिया आपको नज़र आएगी। उस दुनिया में जाके इंसान गुम हो जाता है। गुम इन अ सेंस, हम अकाउंटेंट सारा दिन ये प्लस माइनस कैलकुलेशंस, पैसे गिनते, कैलकुलेट करते, मल्टीप्लाई करते, इन चीज़ों के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि लगता ही है कभी कभी कि शायद दुनिया में आने का वाहिद मकसद बस यही था। फिर अपने शायद वर्ड सुना हो कभी किसी सीनियर वगैरह से अगर मुलाकात हुई हो तो एक लेट सिटिंग का भी ट्रेंड है। मीन्स 9 to 5 बस कहने को जॉब होती है, वरना कब गए कब आए, संडे, इतवारें, छुट्टियाँ, सारा दिन सुबह शाम बस पैसा 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 पैसा। होता अपना नहीं है, लेकिन गिन 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 के लगता है कि शायद ज़िंदगी का मकसद ही है। ठीक है, तो एक बड़ा होने के नाते मैं आपको एक
डेफिनेटली कोई एडवाइस का तो मेरा स्टेटस नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ चीज़ें जो है दो उम्र में ज़्यादा होने की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो लेसन्स अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैंने सीखे हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप तक ट्रांसफ़र कर दूँ, और इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल लिमिटेड सा मेरा नॉलेज है, मैंने कभी ना ही तो एक दावा किया है ना मैं कर सकता हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। चंद पॉइंट्स जो मैंने ज़िंदगी में समझे हैं, जो मुझे समझ आए हैं, अल्लाह ताला ने समझाए हैं, वो पॉइंट्स आज आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कितना टाइम आज दे सकते हैं आप मुझे? आधा घंटा यानी कि इसका मतलब फिर मुझे ही गेम ऑन करनी है। ये तो उसी तरह का चीज़ होगी है जिस तरह क्लास होती है। जी ठीक है सर, वो तो आपकी मर्ज़ी है सर, क्यों मरवाना मुझे, बाकियों करता हूँ। चलिए सर, ये ऑन ए सीरियस नोट मैं चाहूँगा कुछ मैं 5-6 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। तो डेफिनेटली सब कुछ तो याद नहीं रहता है, लेकिन इन पॉइंट्स को हम कोशिश करेंगे कि ज़रा गिन गिन के कुछ जाते हुए मेरी तरफ से एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट के तौर पे आप ले जाएं। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी है वो ये है कि हमारी अल्लाह ताला के सामने, हमारी अल्लाह ताला के सामने कोई औकात नहीं है। ये मुबीन जैसा सारी एक मिनट देखना जरा मुबीन जी, मैंने एक सेंटेंस बोला जी, को बताएगा मैंने क्या सेंटेंस बोला? एग्जैजरेट किया मैंने। ये मेरा वो सिस्टम नहीं खुलेगा ऊपर वाला, वो मेरा डेस्कटॉप नहीं खुल रहा, डेस्कटॉप नहीं खुलेगा। कि ज़िंदगी में हमेशा जहन में रखना आपने कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ से बनाया जिस चीज़ का ज़िक्र करना भी किसी एक डिसेंट महफिल में अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में इंसान में एक स्ट्रेंथ होती है, इंसान महसूस करता है कि मेरे अंदर ताकत है, बोलने की ताकत, चलने फिरने की ताकत, भागने दौड़ने की ताकत। फिर अगर कोई दुनियावी स्टेटस मिल जाए, कि शोहरत, इज़्ज़त, लोग इज़्ज़त करना शुरू हो जाए, लोगों के सामने कोई नाम बन जाए, और उस पर अगर कुछ जेब में कुछ आ भी जाए, तो इंसान अचानक महसूस करता है कि मेरे में कुछ है, मेरे में कुछ था जो नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा, नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे में कुछ होगा तो मुझे मिला है। बल्कि ये भी सेंटेंस चेंज हो जाता, बल्कि मुझे मिला नहीं, मैंने देयरफॉर मैंने कमाया है। ये ताकत मुझे मिली नहीं, मैंने अर्न की है। ये इज़्ज़त, ये शोहरत, मेरे में कुछ होगा, इसलिए मुझे इन सब पैटी लोगों की बजाय मिला है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमेशा ज़हन में रखनी है कि हम इस वक्त जितने इस दुनिया में लोग हैं, वो सब एक ऐसी चीज़ से और ऐसी जगह बनाए गए हैं कि जिसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। फिर हम बहुत कमज़ोर थे जब दुनिया में आए। इंसानी बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। आप लोगों को रियल लाइफ में भी इत्तफाक़ात हुए होंगे। इवन जो बकरी का बच्चा होता है, पैदाइश के फ़ौरन बाद ऐसे जंप्स लगाता है कि इंसानी बच्चा शायद 10-12 साल में भी वो सोच भी नहीं सकता, कोई भी और जानवर। और इंसानी बच्चा कम से कम 8-10 साल पेरेंट्स पे इस तरह से डिपेंडेंट होता है कि उनके बगैर वो हिलजुल भी नहीं सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर स्ट्रेंथ आती है, लेकिन फिर ये स्ट्रेंथ भी परमानेंट नहीं है। ये स्ट्रेंथ कुछ अर्से बाद डाउनफॉल की तरफ चली जाती है और दोबारा इंसान उसी तरह का हो जाता है जिसमें कोई ताकत नहीं और जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, जिसमें कुछ भी एबिलिटी नहीं रह जाती है।
लेकिन एक टेम्परेरी सा फेज़ होता है जिसमें इंसान, आजकल का दौर भी ऐसा है, सबसे पहले अल्लाह पे सवाल उठाता है। इस उम्र में इंसान सवाल उठाता है, मुझे रब नज़र नहीं आ रहा, कोई लॉजिक दो, मुझे रब कहाँ है। इस सेंटेंस का सिंपली मतलब ये है, आपका क्या ख्याल है वैसे सेंटेंस का क्या मतलब है? रब नज़र नहीं आ रहा या मैं रब को भूल गया हूँ? जब भी कभी ये ज़हन में है ना, पता नहीं रब है या नहीं है, तो डेफिनेटली उसके हज़ारों आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दो बेसिक चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा। अच्छा, मैं जो जितनी बातें करूँगा हो सकता है आप लोगों ने पहले बहुत दफ़ा सुनी हो, मेरे लिए भी और आपके लिए जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे, ना मुझे ज़्यादा बातें आती हैं और ना ही शायद ज़्यादा बातें करने का ये वक्त भी है, तो शायद वही बातें याद दहानी के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी कभी ये जहन में आए पता नहीं रब है या नहीं है, तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमेशा अगर आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह दोबारा अपनी औकात में वापस इंसान आ सकता है। नंबर एक, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, हम सब के सांस चल रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। तो ये सांस कौन चला रहा है? नंबर दो, हम सब का दिल धड़क रहा है, हम में से कितनों में कोई मोटर लगी हुई है? ये धड़क ही जा रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता इसमें ज़रा सी इस धड़कन में कमी बेशी हो जाए, ये सांस ऊपर नीचे हो जाए, तो हमारा एंड आ जाएगा। तो जब भी कभी ये महसूस हो कि मैं बड़ी शय हूँ, तो फ़ौरन अपने आप पे इंसान गौर करे, मैं क्या था, मैं क्या हूँ। वक्ती तौर पे मेरे में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिससे मैं अगर रब को भूल जाऊँ तो इससे बड़ा इंसान अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। ये चीज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने जब रियल लाइफ में जाना है तो आपको बहुत से सो कॉल्ड किस्म के इंटेलेक्चुअल्स मिलने हैं जो आपके सामने अपने अपने नज़रियात रखेंगे। मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल 21वीं सदी आ गई है, दुनिया सूद के बगैर कैसे चल सकती है? पुरानी बातें हैं, पुराने किस्से हैं। बेहयाई के बगैर अब माशरा कैसे चल सकता है? इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने सुननी है, सुनना शुरू कर दी हो मैं भी, लेकिन आगे तो आपने यकीनन सुननी है। तो यकीनन इसके बहुत से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। लॉजिकल आर्गूमेंट्स ज़्यादा बहस है। सिंपल सी बहस ये है कि क्या जिसने हमें बनाया है उसे नहीं पता था कोई 21वीं सदी आनी है, या हमें ज़्यादा ही पता चल गया 21वीं सदी आनी है? उसे नहीं पता एक दौर ऐसा आना है जिसमें हमारे ख्याल के मुताबिक इंसान में ज़रा थोड़ी सी जब ताकत होती है ना, महसूस करा दुनिया मैं चला रहा हूँ। मैं अगर ना रहा तो दुनिया कैसे चले? इस वक्त दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो उनमें से अगर मैं सपोज ना हूँ तो उस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे दुनिया में आने से पहले भी ये दुनिया चल रही थी, मेरे जाने के बाद भी शायद बेहतरी चल रही हो। बस मुझे लगता है जो मैं हूँ ना, मैं अगर ना होता तो ये दुनिया बंद हो जाएगी। तो जस्ट ये किस वजह से लगता है? वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी इज़्ज़त हो जाती है, कुछ रिसोर्सेज हाथ में आ जाते हैं, तो इंसान सबसे पहले अपनी औकात को भूल जाता है। एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने रखूँगा। जब भी कभी रब नज़र ना आए, जब भी कभी महसूस हो कि पता नहीं रब है कि नहीं, तो इस एक तस्वीर को अपने जहन में लाना है। तो आपने हो सकता मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई हो, लेकिन सिर्फ इस तस्वीर को, ये ज़रा लाइट ऑफ करेंगे, तस्वीर नज़र ही नहीं आ रही। ये मुबीन आगे आ जाए यार, मुबीन पे चला गया ना, ये मुबीन को बुलाओ यार। रहने दें, ये शेप आप इधर आ जाओ। ये पिछली चला दें बस।
नहीं ये नज़र आ रहा है कुछ? नहीं वो तो नज़र आए ना, ये तो बैठे हैं उनको तो नज़र आ जाए। ये कुछ नज़र आ रहा है सर? ये बताएंगे कौन साहब है? बैठिए चेक कर। सर जी मुझे बताना था सर, आप साथ वाले को बता रहे हैं। इन साहब का नाम बताएंगे? मुबीन साहब प्लीज़ हैव अ सीट। सर यहाँ बैठ जाए, सीधा डायरेक्शन, रिलैक्स होकर टेक लेगा प्लीज़ यार। इन साहब को कोई नाम बताएंगे सर? ये साहब किस चीज़ से बने हैं? नहीं बूंद का जमा वो कतरा बाद में पानी की एक ऐसी बूंद से जिसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं होता है। ये कैसे बन गए ऐसे? इस चीज़ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये साहब बड़े तेज थे, इन्हें आपको खुद बनाया। क्या ये मेरी और आपकी तस्वीर नहीं है? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? आपको शायद याद ना हो, मुझे तो ये याद आ रहा है कि मैं बड़ा तेज़ था, मैं अपने बाजू खींचता था, टांगें खींचता रहता था और कुछ अरसे बाद ऐसे ऐसे हो गए। आपको शायद याद ना हो, ऐसे ही हो गया। तो नंबर 1, हमेशा क्या याद रखना है? प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार। अच्छा मेरे ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम एक दूसरे से कोई इन्फीरियर सुपीरियर हैं। ये इंसानों की बहस नहीं हो रही। हम तमाम इंसान बराबर हैं, हमें अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, ज़ुबान कैसी है, रंग कैसा है, ये कोई बहस नहीं, आपस की बहस नहीं कर रहा। दुनिया में कभी भी कोई शख्स अगर आपसे कहे कि मेरा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, तो एज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम दैट पर्सन आपका ये राइट है कि आप उससे पूछें कि भाईजान आपका ये ओपिनियन क्यों है, आप इसे बताएं कि मैं आपके इस ओपिनियन को क्यों मानूं, मुझे लॉजिक दें। सिमिलरली अगर आप ये कहें मेरा ये ख्याल है, तो उसका भी ये राइट है कि वो आपसे पूछे कि यार ये कहाँ से फ़िलासफ़ी आ गई है, क्या रीज़न है, क्यों आप ये नज़रिया पेश कर रहे हैं। लॉजिकली एक्सेप्ट करें, लॉजिकली दिल माने तो एक्सेप्ट करना। हर बंदे का ये राइट है कि दूसरे बंदे के नज़रियात को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अल्लाह के सामने हमारा कोई राइट नहीं है कि हम अल्लाह ताला से पूछें कि इसकी क्या लॉजिक है। अल्लाह ताला ने बताई होंगी लॉजिक्स, लेकिन लॉजिक समझ आए या ना आए किससे, किसकी, बंदे के हुक्म की या अल्लाह के हुक्म की। अब होता क्या है, तो लोगों की बात हम बग़ैर इफ एंड बट्स के मान लेते हैं और रब को चैलेंज करते हैं। हालांकि लोगों की हर बात को आर्ग्यू करें, लॉजिकली समझ आए ठीक है, ना समझ आए तो ठीक है, लेकिन अगर रब का हुक्म आ जाए तो रब के सामने कंप्लीट सरेंडर कर देना ही मुसलमान, इस्लाम, यही कंप्लीट सरेंडर है। मुसलमान और इस्लाम का मतलब ही क्या है, जो सरेंडर कर दे। तो सिर्फ हमने किसके सामने सरेंडर करना, क्योंकि उसके सामने हमारी कोई बात नहीं, उसने हमें बताया, उसने जितना चाहा हमें बताया, जितना उसने चाहा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ही टेस्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें शायद हमारा वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि जो हम अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला के हर हुक्म की कोई ना कोई लॉजिक भी होगी, लेकिन पहले लॉजिक ढूंढें या पहले अमल करें। और अगर कोई बंदा अपना नज़रिया पेश करे तो उस पर क्या करें, तो उस पर पहले लॉजिक ढूंढना है, बस दिल सही या गलत की तमीज़ लॉजिकली एक्सेप्ट करें, अगर माने दिल तो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट कर दें। यहाँ तक ठीक है मेरी बात? तो किसके सामने प्लीज़ कोई आर्गूमेंट नहीं। नंबर 2, सेकेंडली सर, दुनिया में अब हम अगर दुनिया के अंदर आ जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट फिर ये है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी लंबी है, ये सर बताएंगे?
अब ये जो साहब हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी है? हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है? 60-70 साल तो है ना यार, कम से कम भी अगर कर लें तो 60 साल तो है ना। नहीं, एक भाई ने भी वर्ड यूज़ किया एवरेज। ये एवरेज कैसे निकलती है? नहीं सही है, मतलब एवरेज नहीं, लेकिन एवरेज निकलती कैसी है? किसी की ज़ीरो ईयर्स लाइफ है, किसी की 90 साल लाइफ है, तो 0 जमा 90 डिवाइड बाय, इसका मतलब है 45 साल दोनों की लाइफ है। ऐसे तो नहीं है। मेरा सवाल ये था हमारी लाइफ कितनी है? यू कांट से। कुछ लोग पैदाइशी ही फौत हुए ही पैदा होते हैं शायद, कुछ पैदा होने के कुछ अरसे बाद, कुछ 10 साल बाद, कुछ 5 साल बाद, कुछ 20 साल बाद, कुछ 70 साल बाद, कुछ 80 साल बाद, कुछ 40 साल बाद, वगैरह 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 वगैरह। ये कौन डिसाइड करता है कि किसने कितना अरसा रहना है? मेरा ख्याल है जो अनहाइजेनिक फूड खाता होगा, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को रूटीन नहीं बनाता होगा, अच्छे डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, उसकी लाइफ कम होती होगी, और जब वाइस वर्सा होगा वो ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेता होगा। ऐसे ही नहीं यार, उस गरीब को साफ़ पानी नहीं मिलता होगा, जो मिनरल वाटर पीता होगा उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती होगी। वो ऐसे ही है नहीं यार। कैसा है फिर आप बताएं, हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है? बिल्कुल सही है, अल्लाह को पता है। इसका एक दफ़ा बहुत से इसका आंसर्स हो सकते हैं बात समझने के लिए, लेकिन एक शायद मैंने कहीं पढ़ा या सुना होगा कि इंसान की ज़िंदगी अज़ान और अकामत से लेके नमाज तक का टाइम पीरियड है। अज़ान और अकामत से लेके नमाज तक का जो टाइम पीरियड होता है, उतनी इंसान की ज़िंदगी है। मसलन अज़ान होती है, अज़ान के बाद अकामत का तो पता ना, अकामत कब होती है? जब इमाम साहब आगे चले जाते हैं तो एक पीछे अकामत पड़ी जाती है, और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर के बाद नमाज शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा हम अपनी ज़िंदगी के जहन में लाएँ, जब भी कोई मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अज़ान और दूसरे कान में अकामत कह दी जाती है, लेकिन उस वक़्त कोई नमाज नहीं होती। जब इंसान की डेथ होती है तो उस वक़्त सिर्फ नमाज होती है, नमाज जनाजा होती है, ना अज़ान होती है ना ही अकामत होती है। वो क्यों नहीं होती? वो तो उसी वक़्त हो गई थी जब दुनिया में आया है। इन अदर वर्ड्स, जैसे ही दुनिया में आया, अज़ान और अकामत हो जाने का मतलब ये है कि अब सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार है कि इसकी नमाज पढ़ी जाए और कहानी ख़त्म हो जाए। अब किसी के लिए 70 साल का स्पैन हो सकता है, किसी के लिए 5 साल का स्पैन हो सकता है, किसी के लिए 10 साल का, वगैरह 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 वगैरह। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि जो एवरेज है उसमें हम किस तरफ होंगे। 20 जमा 90 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 भी 45 ही शायद बन रहा है, तो हम इधर होंगे या उधर होंगे। 30 जमा 60, अब अगर आप 30 हैं तो 15 तो कम से कम बनते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फरिश्ता आ जाए तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि यार तू गलत जगह है, साथ वाले घर में देख तो सही, 70 साल के बाबा जी बड़े, मेरी उम्र चेक तो कर यार, एवरेज तो यार, अगर एवरेज मतलब मैं ये चेक तो कर, मैं तो एवरेज से पीछे हूँ, एवरेज आगे निकल गया। शनाख्ती कार्ड दिखा, ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। जी, हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है? नहीं, मतलब ये इस तरह से सोचा जा सकता है, लेकिन अनसर्टन है। अच्छा, अगर ये पता होता कि ज़िंदगी सपोज 70 साल की है, तो फिर अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना किस वक़्त से शुरू करनी चाहिए? एक सेकंड जल्दी कर रहे हैं शायद। अगर तो ये पता हो 70 साल तो 69 ईयर्स, काफ़ी दफ़ा मैंने बोला होगा 69 ईयर्स 364 डेज,
23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकंड पे तौबा कर लेंगे, माल करने की क्या ज़रूरत। जैसे इंसान तौबा करता है पिछले गुनाह खत्म हो जाता है, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो नंबर 1 मैंने आपसे कहा, हमेशा अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करें, अपनी औकात हमेशा जहन में लाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस दौर में सूद के बगैर कारोबार नहीं आ रहा होगा। भाई तेरी मर्जी है, रब से पूछ नहीं जाके, लेकिन यहाँ सूद खा के रब से पूछने की बजाय यहाँ मान ले। लॉजिक नहीं भी समझ आएगी तो इंशाल्लाह, मुझे तो कोई लॉजिक अल्लाह से नहीं पूछनी, अगर आपने पूछनी होगी तो पूछ लीजिएगा। तो रब के सामने क्वेश्चन ना उठाएं। हाँ, अपना, मैं ये नहीं कह रहा अपना इल्म ना इंक्रीज़ करें, लॉजिक्स ना ढूंढें, ये अलग बहस है, लेकिन पहले माने ये एटीट्यूड सिर्फ किसके सामने, इस वक्त उलट है ये। दुनिया के सामने हमारा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया की हम हर बात बस वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स इंग्लिश में कोई हुक्म कर रहा है तो सही कह रहा होगा, पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी बोल रहा है तो पढ़ा लिखा है। तो इस वक्त उलट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तो नंबर 1 अल्लाह के सामने कंप्लीट सरेंडर। नंबर 2 ज़िंदगी कितनी लंबी है ये जहन में रखें। नंबर 3 दुनिया की ज़िंदगी में इंसानों में कुछ डिफरेंसेस हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है, कोई यूरोप में, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी, कोई चाइनीज़, फ्रेंच, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, कुछ अच्छा खूबसूरत नहीं दिखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई आप जैसा माशाल्लाह तेज़ सीए का स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बेचारा साइकिल की दुकान पे काम करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है। डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस टेम्पररी हैं या परमानेंट है? कोई रॉयल फैमिली में पैदा हो गया है, कोई झुग्गी में पैदा हो गया, डिफरेंसेस हैं। टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, परमानेंट डिफरेंस है। और जाने दें यार, खुदा का नाम ले, खूबसूरत आदमी हो का मान हो गई है, कंपनी चेंज करें। आप किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं? 70 साल का डिफरेंस है, अगर 70 साल ज़िंदगी हो। आखिरत का दिन जहन में लाएं, उस दिन भी कुछ डिफरेंस होंगे, लेकिन उस दिन डिफरेंस सिर्फ एक है, कुछ जहन्नमी होंगे, कुछ जन्नती होंगे। वो भी डिफरेंस है, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो हमेशा के लिए। तो यकीनन हमारी कोई चॉइस नहीं थी कि हम गुड लुकिंग होंगे, ज़्यादा हाइट वाले होंगे, किसी रॉयल फैमिली में पैदा होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे, फ्रेंच बोलते होंगे। इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी। डिफरेंस तो लेकिन है, लेकिन ये ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिनके अगेंस्ट, जिनके बारे में इंसान चाहता है कि ये डिफरेंसेस ख़त्म हो और मैं भी उसमें उस जगह पहुंच जाऊं कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हूँ, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये शायद अचीवेबल टारगेट नहीं है। किस डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जिसने कभी रिवर्स नहीं होना? जिस दिन मौत आएगी सबकी कब्र का साइज सेम है। लेकिन यार कनाडा की कब्र सोचें तो बर्फबारी हो रही हो, और अफ्रीका में इतनी शदीद धूप, तो कहाँ की कब्र ज़्यादा अच्छी? आई होप कि ये कोई बहस नहीं है। तो यकीनन टेम्परेरी डिफरेंसेस तंग करते हैं। जिस स्टेज पर आप पहुँचे, कोई बिग 4 में चला जाएगा, कोई बेचारा 6 महीने लटका रहेगा, फिर बामुश्किल को लोकल फर्म मिलेगी, हो सकता है इंडस्ट्री आर्टिकल करे, हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे साथ बैठता हो, अचानक डिफरेंस
अचानक कभी मिलेगा तो आपको 1 मिनट में बता देगा कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया हुआ। बुरा लगेगा। हो सकता है गुड लुकिंग आप हो लेकिन उसका रेफरेंस अच्छा हो, डिफरेंस तो क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ इंसान फिर रब से शिकवा करता है। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वो बिग 4 में जाके टेस्ट दे रहा है, अल्लाह को टेस्ट दे रहा है। उसका किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है? वो तो कामयाब हो गया। जो बिग 4 में पहुंच गया कामयाब नहीं हो गया। सर मेरे ख्याल आपको बिग 4 पता ही नहीं है यार। आप इमेजिन नहीं कर सकते यार, कोई फर्गूसन में बंदा चला जाए और कोई लोकल फर्म में आ जाए, उनका कैसे मुकाबला, वो काम नाकाम हो गया, वो कामयाब हो गया। किस दिन ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, आखिरत तो ठीक है, वो भी ठीक है बात, लेकिन किस दिन ये बराबर हो जाएंगे? जिस दिन मरेंगे। नहीं, ये क्वालिफाई भी। अच्छा, ये मरेंगे कब? 70 साल बाद मरना। 70 साल सर जी, इस तरह तो कम अज़ कम ना करें यार, आपस की डिस्कशन तो मेहरबानी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कम अज़ कम इस वक्त तो रहने पर थोड़ा सा डिस्टेंस ही क्रिएट कर लें। माजरत, वो गेम ज़्यादा ही ऑन हुई हुई है। मैं जी सर, टेम्परेरी डिफरेंसेस की टेंशन लें या परमानेंट की? कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, ये हर इंसान के अंदर ख्वाहिश है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। तो दुनिया में भी बेस्ट एफर्ट करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर बेस्ट एफर्ट के बाद ना मिले जो आप चाहते हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर बेस्ट एफर्ट के बाद कुछ मिल जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। दोनों केसेस में याद रखें कि अभी टेस्ट एंड नहीं हुआ। जो जहाँ भी है वो दुनिया में अपना टेस्ट दे के जा रहा है। ना मिले तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहें क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर मिल जाता तो फिर हम क्या करते हैं। लेकिन आसान नहीं है। ये तभी होगा अगर आपके जहन में वो परमानेंट डिफरेंस रहेगा कि यार मेरा मेन इशू ये है कि कहीं उस दिन कोई परमानेंट डिफरेंस ऐसा ना पड़ जाए जो मैं कभी रिवर्स ना कर सकूं। तो ये भी कब जहन में रहेगा कि ये टेम्परेरी डिफरेंस टेम्परेरी है, जब आखिरत जहन में रहेगी। और ये जहन में रहेगा कि असल चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, रिजल्ट डे पे डिफरेंसेस मैटर करते हैं। ताज़ा आप एग्जामिनेशन हॉल से आए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक शख्स वेल ड्रेस्ड गया है और दूसरा वेल ड्रेस्ड नहीं पहुंचा है तो बताएं दोनों में से कौन बेहतर है? ये बहस ही नहीं है, ये इस वक्त बहस ही नहीं है। तो आप जैसे आपकी तरह सूटेड बुटेड और टाई शाई लगा के पहुंच गया तो मेरी तरह मुंह धोए बगैर ही निकल गया। एग्जामिनेशन हॉल में ये मैटर नहीं कर रहा है। ये मैटर कब करेगा? ये रिजल्ट डे पे मैटर करेगा कि अब सेग्रीगेशन होनी है। तो रिजल्ट डे की कामयाबी जब तक जहन में नहीं रहेगी, ये छोटे छोटे टेम्परेरी डिफरेंसेस हमें ज़िंदगी में बार बार तंग करेंगे। आप अच्छी भली अपनी कोई ओडी घर से निकालेंगे और सड़क पे जैसे ही आएंगे वो पोर्शे या कोई और गाड़ी साथ इस तरह जूम करके निकल जाएगी और आपको अपनी वो मर्सिडीज़ बहरान भी साइकिल नज़र आएगी। जहन में मैं पैदल ही हूँ क्योंकि दिल तो उसमें चला गया। उसमें बैठेंगे, ऊपर से कोई ऐसा शख्स निकल जाएगा जिसका प्राइवेट प्लेन है, कालियंट हो जाएगा। तो ये इस तरह नहीं है कि आपके जिस दिन आपके पास साइकिल होगी आपको मोटरसाइकिल वाला नज़र आ रहा है। अच्छा, आज अगर आपके पास बाइक है तो आपको कभी महसूस भी नहीं हुआ होगा कि सड़कों पे कोई साइकिल वाले भी चल रहे हैं। ज़रा सोचें एक मिनट, आजकल महसूस नहीं हो रहा कि साइकिल वाले नहीं है। लेकिन ज़रा एक सेकंड किसी दिन वॉक करें और ज़रा दूर जाएँ, ज़रा थक जाएँ थोड़ा सा, उस वक्त आपको साइकिल वाला भी खुश नसीब लगेगा। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम गेम शिफ्ट हो जाती है। बस इंसान नीचे नहीं देखता, ये हमारी नेचर में नहीं है और नीचे देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन कब नीचे ही देखना चाहिए और कब ऊपर देखना चाहिए, ये भी रसूल की एक हदीस है कि दुनियावी मामलात में अपने से
नीचे देखो और आखिरत के मामलात में से, आखिरत के हवाले से अपने से ऊपर वालों को देखो। क्या मतलब है इसका? कि दुनिया की नेमतों के हवाले से अपने नीचे देखो कि बहुत से अरबों लोग ऐसे हैं जिनसे मैं ऊपर हूँ, तभी अल्लाह का शुक्र हो सकेगा। लेकिन आखिरत के हवाले से क्या एटीट्यूड होना चाहिए? ऐसे ना ढूंढें जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता और देर फॉर कहें मैं तो बड़ा मुत्तकी हूँ, मिल जाने बड़े ऐसे। आखिरत के हवाले से उन लोगों को देखें जो इस दौर में भी रब का कुर्ब तलाश करने में बहुत आगे से आगे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल उलट है, दुनियावी मामलात में हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर से ऊपर, और आखिरत के हवाले से तो फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऑपोजिट ही अपने आप को करना पड़ना। 180 डिग्रीज का टर्न चाहिए। अगर आप नीचे नहीं देखेंगे दुनियावी मामलात में, तो कभी भी किसी भी चीज़ मिल जाने के बाद आप शुक्र नहीं अदा करेंगे। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट आया, आप पास हो गए, लेकिन आपका कोई दोस्त फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले गया, तो अगर आप ऊपर देखते रहेंगे तो फिर भी शुक्र नहीं करेंगे। और अगर आखिरत को प्राइम नहीं रखेंगे, आखिरत के हवाले से ऊपर नहीं देखेंगे, तो फिर नेकी के जज्बात भी पैदा नहीं होंगे, और आप नेकी के हवाले से भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आई होप मैं को समझा सकूं। जी 3 चीज़ें मेरे ख्याल हुई हैं, 3 या 4। नंबर 1 क्या बात हुई थी? हमेशा अल्लाह के सामने अपनी औकात ज़हन में रखें, सरेंडर कर दें। नंबर 2, हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है। नंबर 3, टेम्परेरी डिफरेंसेस वर्सेस परमानेंट डिफरेंसेस। नंबर 4 जी नहीं कुछ, नंबर 4 आप। हाँ जी, ये तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था ना, ये जो मैं थर्ड पॉइंट कौन सा कर रहा था, टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट डिफरेंसेस को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको हदीस सुनाई है मैंने। नंबर 4 सर, आपने जहन में रखना है कि दुनिया की ज़िंदगी एक एग्जामिनेशन हॉल के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कौन बताएगा कि दुनिया की ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये मैं नहीं बता सकता, आप मुझे नहीं बता सकते, मैं आपको नहीं बता सकता। ये सिर्फ वही बताएगा जिसने हमें पैदा किया है। दोस्त नहीं बता सकते, माशरा नहीं बता सकता, पेरेंट्स नहीं बता सकते। जिसने बनाया वही बताएगा कि दुनिया में भेजने का उसका मकसद क्या है, जिसने भेजा है। तो इस हवाले से मैं एक छोटी सी आयत आपके सामने रखता हूँ। आपने बहुत दफ़ा शायद पहले भी सुनी हो। आयत नंबर 1 और 2, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बड़ी बरकत है और बड़ा बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अब जो इस वक्त हम डिस्कस करें वो सेकंड आयत है। इसी ने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। उसी ने पैदा किया मौत और ज़िंदगी के सिलसिले को, ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश कर सके, टेस्ट ले सके। किस चीज़ का टेस्ट लिया जा रहा है? कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है, और वह ज़बरदस्त है और बख्शने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी और मौत का जो सिलसिला शुरू किया है, इसका एक पर्पज़ बताया है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक टेस्ट हो रहा है, एक आजमाइश हो रही है, और देखा क्या जा रहा है कि कौन अच्छे अमाल कर रहा है। अल्लाह ताला ने जिसको जिस जगह और जिस तरह के टेस्ट में मुनासिब समझा, उसमें उसको उस बंदे को उस टेस्ट में मुब्तला कर दिया, या उस तरह से टेस्ट लेना शुरू कर दिया। देखा सबके लिए कॉमन क्या जा रहा है कि कौन अच्छे अमल करता है। मीन्स से हम अपनी चॉइस से वहाँ पैदा नहीं हुए जहाँ हम पैदा हुए हैं, ना हमें हमारी चॉइस से सलाहियतें मिली हैं। ये सब कुछ गिवन है। बस इन गिवन सलाहियतों के अंदर हमें देखा यह जा रहा है कि हम में से कौन कैसे अमल करता है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर कोई रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है या कोई झुग्गी में पैदा हो गया है, तो किस एंगल से दोनों बराबर हैं? क्यों? उनका टेस्ट हो रहा है।
और देखा क्या जा रहा है कि कौन अच्छे अमल करता है। अब जिसकी कैपेसिटी में जो से अच्छे अमल होंगे उसका अकॉर्डिंगली टेस्ट होगा। जिसको ज़्यादा नेमतें मिली हैं क्या उसका टेस्ट ज़्यादा होगा या जिसको कम नेमतें मिली हैं? आपका क्या ख्याल है? आप जो भी आपने कहा ज़रा ज़हन में रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन सुने, आप कौन सा टेस्ट देना चाहते हैं? आप अपने आप को किस टेस्ट में लेकर रखना चाहते हैं? मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ आप बाइक पे जा रहे हैं और कोई बड़ी सी गाड़ी गुजर जाए, आपका टेस्ट ज़्यादा है उसका? आपका टेस्ट ज़्यादा है या उसका? और यार जाने दें यार, कमाल हो गई। ज़्यादा नेमत किस पे अल्लाह की हुई है? ये दुनिया की चीज़ों को ना जब हम नेमत के एंगल से सोचते हैं ना तो ये बात बनती नहीं है। बीए का पेपर आसान है या सीए का? नहीं, वैसे सवाल है मेरा एक, वैसे सीए का। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। आप कौन सा पेपर लेकर देना चाहते हैं? नहीं, मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि आपको मुश्किल टेस्ट पसंद है। लेकिन अगर वापस उधर ही हैं जिस पे थे हम, किसका टेस्ट मुश्किल होगा? जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं? चलो ऐसा कर लेते हैं। क्या ख्याल है? वैसे लॉजिकली दिल मानता है ये बात? तो अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं करना, भी आपने आयत भी पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इंसाफ करना है। लेकिन क्योंकि हमारा आखिरत के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए जब हम देखते हैं किसी के पास ज़्यादा तो हम समझते हैं ये कामयाब हो गया है ना, कि ये कामयाबी नाकामी ये नहीं है ज़्यादा मिल जाना या कम मिल जाना। कामयाबी नाकामी कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता चलती है। कामयाबी नाकामी किस दिन पता चलती है? जब रिजल्ट आता है। तो दुनिया की ज़िंदगी को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अलावा कुछ भी समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने मैं बनाया वो बता रहा। मसलन आपने बताया ना कि वो शख्स माजूर पैदा हो जाते हैं समटाइम, पैदाइशी माजूर, को बड़ा खूबसूरत पैदा हो जाता है। ऐसे क्यों है? अगर तो ये रिजल्ट है तो ये तो जुल्म है। कोई खूबसूरत पैदा हुआ है, कोई माजूर पैदा हुआ है, दोनों को आजमाया जा रहा है। यकीनन अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए, लेकिन अगर ज़रूरत की हद तक चीज़ें हों तो एक हद से ज़्यादा जब इंसान को चीज़ें मिलती हैं तो सबसे पहले रब ही भूलता है। जब हर वक्त जेब में रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो इंसान को महसूस होता है जैसे ये जितनी चीज़ें हैं दुनिया की ये मैं परचेज़ कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ परचेजेबल। अभी शायद आप ना सुना हो, कुछ अर्से बाद आप सुनेंगे कि यार अगर मैं बीमार हो गया तो मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा, तो ज़्यादा मसला हुआ तो अमेरिका चला जाऊँगा। आप सेंटेंस सुनेंगे, मैं तो अनफॉर्चुनेटली शायद ज़िंदगी में सुन चुका हूँ कि हमें नहीं ज़रूरत रब की, आई कैन परचेज, मैं डॉक्टर रख लूँगा। एक नशा सा होता है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। ज़्यादा मुश्किल टेस्ट कौन सा है? नेमतें ज़्यादा हों या कम हो? रब को भूलने का खदशा कब होगा? दोबारा सीए में लेके सीए की तरफ आते हैं। सीए अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझाने में ज़रा आसान हो जाएगा। दोबारा रिजल्ट वाले दिन जो बंदा पास हो गया उसका टेस्ट मुश्किल होता है या जो खुदा न खास्ता रह गया? ज़रा एक मिनट सोच लें। जो फेल हो गया वो तो बेचारा अकेला होता है, कहीं किसी के नुक्कड़ पे होता है, कोशिश करता है कोई नज़र ना आए, मोबाइल भी बंद कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कोई एक अगर पास हो गया ना उसने अब सबको फ़ोन करना ही करना है और पूछना ही पूछना है, और उसने भी वो ढूंढने हैं जिसके बारे में उससे ज़्यादा खदशा होगा कि ये रह गया होगा। तो जो गरीब रह गया वो तो कहीं नुकरे लगा होगा, दुनिया भी सोच रहा होगा, रब से भी सोच रहा होगा, लेकिन जो पास हो गया वो अचानक महसूस करेगा यार
ये जो रह गए ना ये पढ़ते नहीं थे, आता है ज़हन में। और हो सकता है जो खुदा ना खासा जो पढ़ाता हो वही रह गया हो, ये इत्फाक़ात भी हो जाते हैं यहाँ। लेकिन जैसे इंसान पास होता है इंसान भूल जाता है कि ये बस वो कहता है मेरे में कुछ होगा, मैंने कुछ किया होगा जो मुझे भी नहीं पता। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग खुशियों में रब को भूलना ज़्यादा ईजी है, और मुश्किलात में तो रब ही याद आता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ना करे मुश्किलात आएँ, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। ज़्यादा इंसान तभी फंसता है जब रिसोर्सेज हों, ताकत हो, उसके साथ एक नशा होता है, तो इसमें रब को भूलना ईजी हो जाता है, बड़ा आसान सा हो जाता है। तो उन हालात में रब को याद रखना कोई आसान काम नहीं है। अब हो सकता है हमारा ख्याल हो कि हमें अल्लाह ताला को चाहिए था कि ज़्यादा नेमतें देता और देर पर हमें आजमाता। हो सकता है हमारे जहन में हो यार कि मैं भी किसी रॉयल फैमिली में पैदा होता और वो मेरी आजमाइश होनी चाहिए थी। तो ये रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे में कौन सी एबिलिटीज़ हैं और हम कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। दुनिया में अगर आपने टेस्ट के अलावा कुछ भी समझा इस ज़िंदगी को तो फंसेंगे, बार बार फंसेंगे। ये छोटे छोटे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। बिग 4 की एग्जांपल आने वाली है। एक आम फर्म बिग 4 क्वालिफाई कर गया, मैं रह गया, उसकी 2 लाख की जॉब है, मेरी 1,70,000 की जॉब है। हर वक्त अगर इस कंपैरिजन में लगे रहेंगे, देर फॉर वो कामयाब है, इंग्लैंड चला गया, दुबई चला गया, दुबई सेटल हो गया, देर फॉर कामयाब हो गया, मैं पाकिस्तान ही रह गया, मैं लाहौर में रह गया। अगर ये कंपैरिजन ज़िंदगी में किए तो ज़िंदगी बस बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप भी दुबई पहुंच गए तो कोई इंग्लैंड पहुंचा होगा, फिर आपने उस चक्कर में पड़ जाना अब यूरोप जाऊँ, यूरोप पहुंच गए, आप कहीं कनाडा सेटल हो, और अचानक पता चलता है किसी दिन कि बाल सफ़ेद हो गए हैं और कहानी तकरीबन एंड हो रही है। लेकिन उस वक्त फिर इंसान को ये बातें समझ नहीं आती हैं, समझ आती हैं सॉरी। उस वक्त इंसान इन चीज़ों पे वो चाहता ही है कि अब मुझे ना ही पता चले, क्योंकि अचानक महसूस होता है कि मैंने तो अपने 60 साल 50 साल ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं। तो ये चीज़ें आज और इसी उम्र में क्लियर करने वाली हैं। तो मेरे जैसे इस तरह की बातें, मेरे जैसी ये जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा सुननी ज़रूर है कि रब का निज़ाम ऐसे ही सुनाई, रब ने सुनवानी है। लेकिन अगर ये 60 साल की उम्र में सुनाई दें तो उस वक्त बहुत देर हो जाती है। फिर इंसान इस चक्कर में बस पड़ जाता है रब बड़ा गफूर रहीम है, बाकी जो रह गया वो भी गेम ऑन है। क्योंकि उस वक्त इंसान का महसूस होता है एक आदत बन जाती है। आदत को ठीक करना आसान नहीं है, और वैसे भी ये एक्नॉलेज करना कि मैं गलत हूँ ये आसान नहीं है। इंसान हमेशा चाहता है कि उसे ये कहा जाए कि तो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसे पता होता है कि मैं गलत हूँ। तो इंसान सच नहीं सुनना चाहता, तभी आपकी आदत डेवलप हो रही हैं। अभी ज़िंदगी में अपने बहुत कुछ देखना है, तो पहले ही कुछ चीज़ों को क्लियर करें। और डेफिनेटली मेरी ये बातें भूल जाएंगी। ये जो मैं बातें आपके सामने कर रहा हूँ ये तभी याद रहेंगी जब आप अपने आप को कंसिस्टेंटली कुरान और सुन्नत के साथ अटैच रखेंगे। ज़रा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ज़रा लाइट आ अल्लाह के सामने हमेशा अपनी औकात जहन में रखी जाए। नंबर 2 टेम्परेरी वर्सेस नंबर 2 ज़िंदगी कितनी लंबी है, हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है। नंबर 3 टेम्परेरी डिफरेंसेस वर्सेस परमानेंट डिफरेंसेस। नंबर 4 दुनिया की ज़िंदगी इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल और दुनिया की ज़िंदगी में बस एक छोटा सा फ़र्क ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर भी पता होता है कि 3.25 घंटे का है टाइम डिसाइडेड, 9 बजे से लेके 12:15 बजे तक। दुनिया की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा अनसर्टन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, और जो गुजर गया वो तो ख़त्म हो गया। अब रिमेनिंग कितना रह गया ये मैटर करता है। तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये फिर मसला। 50 साल उम्र हो जाएगी तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग लाइफ।
तो जो गुजर जाएगी वो तो काउंट कर लेंगे आप, लेकिन जो रह जाएगी वो भी अनसर्टन है। नंबर 5 जी, देन सर उसके बाद आपने नंबर 5 जहन में रखना है, कामयाब कौन? जी सर, कामयाब कौन है? जी क्वेश्चन है जी आपसे, हु इज सक्सेसफुल? ये राइट किसके पास है कि वो बताए कि हु इज सक्सेसफुल? आई कैप जहन में लाएं जी। सॉरी ज़रा कम अज़ कम आज तो नहीं बनता था, लेकिन वैसे बात समझ नहीं रही। हु हैज़ द राइट टू डिक्लेयर कि हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ना नहीं यार, मेडिकल कॉलेज वाला बताएंगे। हु विल डिफाइन द सक्सेसफुल डॉक्टर? आई कैप। शुक्र अल्लाह आई कैप वहाँ नहीं है। जो भी प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन की बॉडी ये बताएगी कि उस प्रोफेशन के हवाले से सक्सेसफुल कौन है। लेट्स अज्यूम मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर लिए हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी याद करनी है, और आपके साथ रह रहे के बाकी चीज़ें भी सारी याद कर ली हैं। देखिए ये याद कर लेने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आई कैप में रजिस्ट्रेशन तो करवाई नहीं, तो देयरफॉर मैं आई कैप के नज़र में कामयाब हो गया। फिर मैं आई कैप वालों को कॉल करूँ कि यार मुझे सब कुछ आता है, और मैं गिला करूँ कि मेरे पास नहीं करता, मुझे डिग्री नहीं सॉरी देता, पास तो मैं हो ही गया। तो हु विल डिफाइन, हु विल डिसाइड? जो बॉडी है वही डिसाइड करेगी। तो ये अब कौन बताएगा कि कौन सा इंसान कामयाब है, कौन सा इंसान नाकाम है? जी सर, जिसने बनाया दोस्त बताएंगे, फैमिली बताएगी, पेरेंट्स बताएंगे, माशरा बताएगा, कौन बताएगा? जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने वापस नहीं वो बताएगा। तो अल्लाह के नज़र में कौन कामयाब है? अल्लाह को पता है। क्या अल्लाह ने बताया? नहीं है, ये तो बिल्कुल जवाब सही है, अल्लाह को पता है। अब अगर अल्लाह ने ना बताया फिर तो हम कैसे करें, लेकिन क्या अल्लाह ने बताया? कुरान का सदी मौजू ही है, कुरान का ये मौजू ही ये है कि कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। तो इसके बहुत से हवाले हो सकते हैं, सिर्फ एक हवाला इस वक्त मैं जल्दी से ज़रा ढूंढ लूँ। आयत नंबर 185 सूरह अल इमरान की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, ये तो सिंपल वैसे ट्रांसलेशन हो सकती है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और बेशक पूरे दिए जाएंगे तुमको तुम्हारे अजर, अजर का मतलब बदला, लेकिन किस दिन? क़यामत के दिन। जो इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं उस हवाले से नेक्स्ट वर्ड्स हैं, बस जो बचा लिया गया आग से यानी जहन्नुम से और दाखिल किया गया जन्नत में, तो यकीनन हो गया वो। तो अल्लाह ताला के नज़दीक बस कामयाब कौन है? बस कामयाब कौन है? नहीं, ये भी नहीं लिखा हुआ यहाँ, जिसने खुद को भी नहीं बचा लिया, ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। बात आपकी ठीक है वैसे, लेकिन ये पैसिव वॉइस, जिसे बचा लिया गया और जिसे दाखिल कर दिया गया, किया गया, इसमें भी बड़ी गेम है। मैं तो शायद हम अपने अमाल से शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत रिक्वायर्ड होगी। कहाँ से बचा लिया गया और कहाँ दाखिल कर दिया गया। अब मेरे और आपके अपने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, माशरे के अपने हो सकते हैं, मीडिया के अपने हो सकते हैं, पेरेंट्स के अपने हो सकते हैं, सक्सेसफुल कौन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट डे जो हमारा है, आखिरत वाला दिन, उस दिन कामयाब कौन है?
जो जहन्नुम से बच गया, जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया, अल्लाह के नज़दीक बस वो कामयाब है। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंसेस बोलूँगा, आपने ज़रा सोच समझ के वो सेंटेंसेस रिपीट करने हैं। ज़रा रेडी? इस लाइन के मुताबिक एलॉन मस्क कामयाब है। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आई, मैं आवाज़ रिपीट करता हूँ। एलॉन मस्क नाकाम है। नहीं, रिपीट करना आपने। पहला तो आपने सोचा, दिल नहीं माना। दूसरा, लगा तो सही लेकिन दिल फिर नहीं माना। सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। हजरत बिलाल कामयाब है। अब आपका दिल से नहीं पूछा, आपने कह दिए। दुनिया में कुछ नज़र आ रहा है, हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं। 180 डिग्री डिफरेंस है। अगर ये क्लियर ना हो कामयाब कौन है, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। क्या रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए? लेकिन क्या रिसोर्सेज, अच्छा क्या रिसोर्सेज होने का मतलब नाकाम है? क्या रिसोर्सेज ना होने का मतलब कामयाब है? सोचना, ठंडे दिल सोचना। मैंने क्या सेंटेंस बोला जी, को रिपीट करेगा? क्या रिसोर्सेज होने का मतलब इंसान नाकाम है? और दूसरा क्या बोला मैंने? क्या रिसोर्सेज ना होने का मतलब इंसान कामयाब है? ये बहस नहीं हो रही। क्या रिसोर्सफुल शख्स भी कामयाब हो सकता है? लेकिन क्या रिसोर्सफुल होना कामयाबी है? क्या रिसोर्सेज ना होना नाकामी है? ये बहस नहीं है। रिसोर्सेज होने के बावजूद कामयाब हो सकते हैं आप। और अगली जब मैं बात करने लगूँ, ये ज़रा ठंडे दिल से सोच लीजिएगा पहले एग्री करने से। और ये भी हो सकता है कि रिसोर्सेज ना हो तो फिर भी आप कामयाब हो जाए। रिपीट करेंगे मैंने क्या बोला? मेरे ख्याल में सही बोल नहीं पाया। इज इट पॉसिबल? क्या रिसोर्सेज होने वाला नाकाम हो सकता है? रिसोर्सेज होने वाला नाकाम, और क्या रिसोर्सेज ना होने वाला कामयाब हो सकता है? तो रिसोर्सेज होना ना होना एक अलग बहस है, और अल्लाह के नज़दीक कामयाब और नाकाम होना एक अलग बहस है। क्या मैंने भी दिए है, सुन आपने भी दिए है, लेकिन जब हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो एक टेस्ट स्टार्ट होगा। आप मोबाइल ऑन करेंगे, एक टेस्ट स्टार्ट होगा। आंखें कुछ और देखेंगी, रब की किताब कुछ और कह रही है। यहाँ टेस्ट ये शुरू होगा कि क्या हमें अपनी आंखों पे ज़्यादा यकीन है या हमें अल्लाह की बातों पे ज़्यादा यकीन है। और यही वो ईमान बिल गैब है। यहाँ कौन सक्सेसफुल है? वही है जिसका आपको पता है, लेकिन ये सब टेम्पररी है। सक्सेस, अनसक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना, ये कहाँ डिफाइन होना है? तो दुनिया में अगर है या नहीं है, आप आजमाए जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्नॉलेज किया है कि अगर है तो टेस्ट मुश्किल है, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो टेस्ट मुश्किल है। तो ये टेस्ट है। आप ये कर दें, रब आपसे बड़ा खुश है। किसी का से ये नहीं हो रहा, रब उससे नाराज़ है। ये कोई बहस नहीं है। एक अलग बहस है कि अल्लाह राज़ी है या अल्लाह नाराज़ है, और सीए की डिग्री मिल जाना ना मिल जाना, ये एक अलग बहस है। मेरे अलावा किसी को समझ आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को तो क्लियर है ना? तो कामयाब कौन? जिसे अल्लाह राज़ी हो।
तो आज के बाद इसका मतलब है कभी आप इस गार्डन टाउन में वॉक कर रहे हो, शाम का टाइम है, वॉक पे निकले हैं आप और चलते चलते ज़रा मॉल टाउन की तरफ चले गए, 8 कनाल के घर के सामने से गुजर रहे हैं आप, तो आपके जहन में यकीनन आएगा यार बड़े मुश्किल टेस्ट में है यार, फंसा हुआ। और अगर उसी दौरान उसके घर का दरवाज़ा खुला, 2 बाहर निकली और 10 अंदर खड़ी नजर आ गई, तो आपके जहन में आएगा यार ये तो बहुत ज़्यादा फंस गया है यार। अगर सर ये जहन में ना आया तो इसका मतलब हम धोखा खा रहे हैं। हाँ, इसका खुदा ना खास ये मतलब नहीं वो नाकाम है, अल्लाह ना करे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कामयाब हो गए, लेकिन इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा आजमाया जा रहा है। बाइक पे जा रहे हो किसी दिन, आज के बाद इंशाल्लाह, तो लंबी सी गाड़ी साथ से गुजर जाए, तो कहेंगे बड़ा मुश्किल में यार, या अल्लाह इसे इस मुश्किल में कामयाब कर मौला। तो अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, वो बाइक पे आ जाए। कुरान पढ़ेंगे, याद दहानी होती रहेगी सर, वरना ये भूल जाएगा। अगर रोज़ रूटीन में ही ज़िंदगी का हिस्सा हुआ, जहाँ ज़िंदगी में मौका मिलना है आपको, आपने पूरी कोशिश करनी है, बल्कि मौका मिलना नहीं, मौका ढूंढना है। कम अज़ कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर कोशिश करनी है कि कोई दर्स कुरान की महफ़िल, कोई ऐसी जगह जहाँ सच बोला जा रहा हो, वहाँ ज़रूर जाएँ, वरना भूल जाएंगे। सुबह शाम सिर्फ गिन के लोगों के गिन के कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर करके, मोबाइल पे ये दुनिया देखते देखते इधर उधर आते जाते सब भूल जाएगा। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी है कि हम भूल जाते हैं, ये ज़रूरी है। अगर सारे गम याद रहें तो इंसान आगे जा ही नहीं सकता है। मसलन अगर वो सारे पेपर ज़िंदगी में, ज़िंदगी के सारे बैड एक्सपीरियंसेस अगर जहन में रहे तो इंसान आगे नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने मैंने क्वालिटी वर्ड यूज़ किया, ये कमज़ोरी भी है, अच्छी चीज़ें भी भूल जाते हैं, तो इंसान भूल जाता है, ये इसके अंदर एक क्वालिटी कह लें या कमी कह लें, तो अच्छी चीज़ें भी भूल जाती हैं। और फिर सारा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सारा दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने हर तरफ से मीडिया की बातें सुनते रहें आप, वहाँ तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो सारा दिन फजूलियात सुनने के बाद सारा हफ्ता, महीने और कभी कभी ज़िंदगी में ये सुन लें तो वो असर नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम। अच्छी चीज़ों की बार बार याद दहानी हो तभी इंसान अमल कर पाता है, वरना कदम पे इंसान धोखा खाता है और उसी धोखे में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी एज में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि ये जहन में रहे कि कामयाब कौन, हु विल डिफाइन, हमेशा याद रखना है। लेकिन ये दुनिया आपके पीछे तभी आएगी जब आप दुनिया की नज़र में कामयाब होंगे, तो धोखा लगता है वहाँ से। अगर आप दुनिया की नज़र में नाकाम है तो लोग नहीं आपके पास आएंगे, लेकिन हो सकता है कि लोग आपको नाकाम समझ रहे हों और रब के नज़दीक आप कामयाब हों। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया कह दे कि आप कामयाब हैं, लेकिन खुदा न खास्ता रोज़े क़यामत रब कह दे कि तो फारिग है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि दुनिया क्या कहती है। एंड वाइस वर्सा एज वेल, पूरी दुनिया कह दे कि नाकाम है, लेकिन रब कह दे कामयाब है, तो स्टोरी एंड है। पूरी दुनिया कह दे कि अकाउंटिंग नहीं आती, लेकिन आई कैप मेंबरशिप दे दे, तो भाड़ में जाए दुनिया। और पूरी दुनिया कह दे इससे ज़्यादा अकाउंटिंग का किसे पता होगा, लेकिन आई कैप बार बार नंबर ही भेजी जाए, तो बहस ही नहीं है। कभी 49, कभी 48, फिर 49, फिर 47। लोग भी आके कहीं यार पढ़ा दे, और आप पढ़ाई जा रहे हैं, जाते हुए करे यार छा गए, फिर 48, बहस ही नहीं है। लोग कहते नहीं समझा दे और आप ना बता सकें, लेकिन उधर से मैसेज आ रहे पास। तो हु इज़ कामयाब
ये बहुत बड़ा आजकल का प्रॉब्लम है। आंखें कुछ और देख रही हैं, रब का मैसेज कुछ और है। जी 5 चीज़ें मेरा ख्याल हो गई हैं। नंबर 1, अपनी औकात याद रखें। नंबर 2, अच्छा ज़रा वर्ड थोड़ी सा, औकात ज़रा अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह के नज़दीक औकात कुछ नहीं है, तो अल्लाह के सामने औकात की कोई बहस नहीं है। नंबर 2, ज़िंदगी कितनी लंबी है। नंबर 3, टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट डिफरेंसेस। नंबर 4, दुनिया की ज़िंदगी एक एग्जामिनेशन हॉल है। नंबर 5, कामयाब कौन। लास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट नहीं, मैंने आपके बिहाफ पे बोला। देन सारी ज़िंदगी में अपने नेसेसिटीज़ और डिज़ायर्स का डिफरेंस क्लियर रखना है। नेसेसिटीज़ वर्सेस डिज़ायर्स। ट्रांसलेशन कर दें जी, नेसेसिटी क्या होती है? ज़रूरियात वर्सेस ख्वाहिशात। डिज़ायर्स, नीड्स, ख्वाहिशात, सॉरी नेसेसिटीज़, ज़रूरियात वर्सेस डिज़ायर्स मीन्स ख्वाहिशात। मेरा तो ख्याल है ख्वाहिशात आर इक्वल टू ज़रूरियात। ज़रूरियात इज़ इक्वल टू ख्वाहिशात। इज़ इक्वल टू, ये इनमें डिफरेंस है। तो नेसेसिटीज़ वर्सेस डिज़ायर्स। मैं नहीं समझता कि ये पूरी दुनिया भी अगर आपको मिल जाए तो आपकी डिज़ायर्स, आप ऐसे हो सकता है शरीफ लोगों कम से कम मेरी तो नहीं होंगी। जब इंसान को कुछ मिल जाता है ना तो उसके बाद उसे कुछ और चाहिए, इंसान बोर हो जाता है। बचपन अगर ज़हन में लाए हम, तो अगर डैडी कभी टॉफ़ी ले देते हो तो शायद हम बड़े सेटिस्फाई हो जाते हो, खुशी खुशी घर आ जाते हो, भागते दौड़ते। फर्स्ट पॉकेट मनी आपको ज़िंदगी में जो भी मिली होगी तो आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन डे होगा। लेकिन अगर आज वो अमाउंट आप जहन में लाएं तो आपको हंसी आएगी। अब जितनी भी आपको आज मिल रही है आप इससे ज़्यादा चाहते हैं। आप ये नहीं देख रहे मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, अब आप कहीं और जाना चाहते हैं। और आपका क्या ख्याल है कि अगर आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाएंगे, फिर आप कुछ और चाहेंगे। एलॉन मस्क, आपने सुना ही होगा, मैं ज़्यादा आपको बातें बताऊंगी, मार्स पे जाना चाहता है। एलॉन मस्क मार्स पे जाना चाह रहा है, उसे क्या तकलीफ है? वो बोर हो गया। आप क्यों नहीं जाना चाहते? आप नहीं, आपके पास अभी दुनिया में काफ़ी कुछ रहता है, आपके पास दुनिया में काफ़ी कुछ रहता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जून के महीने में आपने एक वाक़या सुना होगा, जो टाइटैनिक का मलबा देखने लोग पहुंचे हुए थे। आप क्यों नहीं गए? नहीं, नंबर वन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 1 शायद अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि $2.5 लाख पर पर्सन टिकट थी। और नंबर 2 शायद अभी उसके अलावा काफ़ी कुछ रहता है। वो वहाँ क्यों गए होंगे? क्या उन्होंने बाकी चीज़ें देखनी होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई पहली ख्वाहिश होनी है कि मैं वहाँ जाऊँ। जो वहाँ जा सकता है या वो जो वहाँ जाना चाह रहा होगा उसने बाकी मेरा ख्याल मोटा मोटा दुनिया को कवर कर ही लिया होगा, तो वहाँ क्या तकलीफ है? जब जेब में कुछ हो फिर तंग करती है चीज़। या आप बात भी समझ सकते हैं, जब वो पहले दिन डैडी के पैसे आते हैं, ये कम 2, 3, 4 जब भी आते होंगे हॉस्टल वालों की लाइफ में, उस दिन फिर ज़रा दिल करता है कि अगर वो हो जाए आज, लेकिन ऐसा ऐसा तो जब जेल में हो तो फुड़कता है। तो क्या मैं ये रहा था, बरल कमिंग बैक, नेसेसिटीज वर्सेस डिजायर्स। आपने कोटेशन से सुनिए, कोटेशन कह लें या कुछ सेंटेंस कह लें कि दुनिया से बादशाह भी
बड़े से बड़ा बादशाह भी अपनी ख्वाहिशात साथ लेके गए। तो ख्वाहिशात पूरी करना इस दुनिया में एक अनअचीवेबल टारगेट है, अनअचीवेबल टारगेट है। अगर ज़रूरियात पूरी हो जाए तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह कह देना चाहिए? अब ज़रूरियात क्या हैं और डिज़ायर्स क्या हैं? प्रॉब्लम ये ज़िंदगी में आना है कि फ़िलहाल तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हों जो फ़िलहाल डिज़ायर्स की कैटेगरी में है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हो सकता है कि आपके ज़हन में आए कि यार अगर मेरे पास मर्सिडीज़ ना भी हो तो कुछ चलेगा, वो हो जाए बस ठीक है। मर्सिडीज़ ना भी हो तो ओके, लेकिन अगर मर्सिडीज़ जितने पैसे आ गए तो फिर वो फुड़केंगे। होता ये है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज आते हैं इंसान डिज़ायर्स को नेसेसिटी समझ लेता है, डिज़ायर्स नेसेसिटी की कैटेगरी में लाना शुरू कर देता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो नेसेसिटी है, लेकिन वो डिज़ायर्स जो पूरी हो सकती हैं इंसान उन्हें नेसेसिटी समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्सिडीज़ ले लिया आपने, नेसेसिटी पूरी होगी, सो कॉल्ड नेसेसिटी पूरी होगी। इसका मतलब अब इसके बाद अगर पैसे आ भी जाएं तो उससे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिज़ायर है। लेकिन जैसे थोड़े से और आएंगे वही मर्सिडीज़ जो बड़े शौक से ली होगी, पीछे मुड़ के देखने को दिल भी नहीं मानेगा, ऑब्सलीट हो जाएगी। ऑब्सलीट का मतलब होता है पुरानी हो जाएगी, नहीं पुरानी नहीं हो जाएगी, वो गरीब आउटडेट नज़रों से गिर जाएगी। मेरा ख्याल ऑब्सलीट का मतलब ये नहीं होता कि पुरानी होगी, ऑब्सलीट का मतलब आउटडेट होगी। आउटडेट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फैशन होगी, उससे बेहतर आ गई या उससे ज़्यादा चमकदार आ गई, दोनों नहीं, दोनों उससे बेहतर है। तो ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आना है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आपके डिज़ायर्स की कैटेगरी में हैं, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज आते जाएं, अगर आपने डिज़ायर्स को नेसेसिटी समझना शुरू कर दिया तो याद रखें फिर ज़िंदगी दोबारा ज़ाया होने का शदीद ख़दशा है, क्योंकि डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होंगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर टाइम नहीं मिलेगा इस बात के लिए कि मैं कोई नए काम कर लूँ जो मेरे लिए आखिरत में बेनिफिशियल हो जाए। क्या अच्छे कपड़े पहनना, कंसंट्रेशन से ज़रा कुछ सवाल हैं जी आपके सामने, क्या अच्छे कपड़े पहनना नेसेसिटी है या लग्जरी है? तेरा सवाल क्लियर है? क्या सवाल पूछा मैंने? नेसेसिटी है या लग्जरी है? किस ब्रांड के पहनना नेसेसिटी है? मटेरियल चीज़ है, नहीं मटेरियल। प्रॉब्लम ये आना है कि आपकी अलमारियाँ बड़ी होनी हैं, लेकिन जैसे कोई नया ब्रांड का नया सूट या कपड़ा आपने देखना है और जेब में इजाज़त दी, और प्रॉब्लम फिर अगला ये आता है कि अगर जेब ने इजाज़त ना दी और दोस्तों यारों ने वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है, फिर करप्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर हाथ पड़ रहा होगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत करप्शन से नहीं रोक सकेगी, सवाए आपके खौफ के। क्या अच्छी गाड़ी होना नेसेसिटी है या लग्जरी है? नहीं, सवाल है आपसे। नहीं, ठीक है, अच्छी गाड़ी होना नेसेसिटी है लग्जरी है? मेरा ख्याल आपको मेरे सवाल फजूल लग रहे हैं। नहीं, हकीकत यही है, लग्जरी है नेसेसिटी है। लेकिन जब इस चक्कर में पड़ेगा ना कि अब वो भी नेसेसिटी है, अब वो भी नेसेसिटी है, तो फिर कहानी एंड हो जानी है। क्या हर रोज़
रेस्टोरेंट से खाना खाना नेसेसिटी है या लग्जरी है? मैं उस रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा जिस रेस्टोरेंट से आजकल आप खा रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। नेसेसिटी है या लग्जरी? लेकिन कभी हफ्ते में खा लिया, महीने में खा लिया, मैं नहीं कहूँगा ये लग्जरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोपहर का खाया और अगले रेस्टोरेंट का प्लान करके शाम के लिए उठें, ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। Who will define, आखिरी सवाल इसमें, Who will define what is necessity, what is luxury? ना मैं, ना आप, ना मैं आपके लिए, ना आप मेरे लिए डिफ़ाइन करेंगे कि नेसेसिटी क्या है और लग्जरी क्या है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका हज़रत सल्लल्लाहु की लाइफ की शक्ल में हमारे लिए उसवा हसना बनाया, बेहतरीन उसवा हसना बनाया। तो हमारे लिए रोल मॉडल सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु की ज़ात है, उसके जितने नज़दीक पहुँचने की कोशिश हम कर सकते हैं उतना ही हमारा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। वहीं से पता चलेगा कि नेसेसिटीज़ क्या होती हैं और लग्जरीज़ क्या होती हैं। अगर ज़िंदगी में आपने बेंच मार्क डिफरेंट कर लिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही अगर आपने कहीं ऐसी जगह से ले लिया जो हमारे लिए बेंच मार्क ही नहीं है, तो ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। तो किसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आइडियल ज़िंदगी गुजारी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। उसको सामने रखेंगे तो कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, लग्जरीज़ क्या होती हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, हर क्वेश्चन का आंसर वहीं से हमारे सामने आएगा। मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, हम एक दूसरे के लिए हरगिज़ रोल मॉडल नहीं हैं। हमारे लिए अल्लाह ताला ने लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन उसवा ज़िंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ात में हमारे सामने रखा है। ठीक है जी। तो फाइनली मेरी सारी बहस की कंक्लूजन ये है कि ज़िंदगी गुजर जानी है। अगर आप इसके वक्त एज 22 ईयर्स है, 23 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो जो गुजर गया है, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, जो गुजर गया है वो कितने अरसे में गुजरा है? मेरा एक अजीब सवाल है। मैंने खुद बताया कि 20 साल है, 23 साल है, 22 साल है उम्र, और सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कितने अरसे में गुजरा है? 2-4 दिन। ये पिछला महीना गुजरा आपका ज़िंदगी का। गुजारते हुए तो लग रहा था सदियाँ गुजर रही हैं, लेकिन इस लम्हे बैठ के ऑनेस्टली नहीं, ये तो खैर करना मुनासिब नहीं, पता नहीं चला। एक आध दिन और ठहरे फिर शायद आप ये कह सकते हैं पता नहीं चला, लेकिन पता तो लग पता बल्कि गया, लेकिन वो कितनी देर में गुजरा। आपको जो जो याद है कि मैंने क्या क्या किया था, वो अभी की बात है। 3 दिन पहले की बात, अभी हफ्ता पहले, महीना पहले, अभी नहीं लग रहा। यकीनन पूरा महीना गुजरा है, 30 दिन गुजरे होंगे, 31 दिन गुजरे होंगे, ज़्यादा गुजरे होंगे, लेकिन बस वो गुजर गए हैं। अगस्त का महीना गुजरने का मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी गुजरी जाती हैं और खुशियाँ तो आपको भी पता है कि बड़ी जल्दी गुजर जाती हैं। तो जब अगस्त का महीना ज़िंदगी में गुजर जाता ना, तो इसका मतलब ज़िंदगी गुजरी जाती है। अगर इस पेपरों से पहले वाला महीना गुजर जाता है, जो हालांकि गुजारते गुजारते लगता है शायद सदियाँ गुजर रही हैं, लेकिन वक्त गुजर जाता है। तो अगर ज़िंदगी ना गुजरनी होती, मरना बुढ़ापे में होता, तो फिर तो मैंने आपको तंग ही किया है। आपको इस उम्र में यहाँ बुला के तंग किया, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसका पता नहीं चलता है। तो सिर्फ आपको तंग करने का मकसद आज ये था कि एक नंबर 1 अपनी कुछ ऑब्लिगेशन सेटल हो सके। आप लोगों ने मेरी पता नहीं कौन कौन सी फजूलियात सुनी है ज़िंदगी में, अल्लाह करे कोई अच्छी बात भी मेरे से हो गई हो। अडॉप्ट की हिम्मत अल्लाह देता है। अल्लाह करे कि मैंने खलूस से कोई बात की हो जो आपके दिल में रह रहे, मेरी कमी कोताही तो अल्लाह ताला माफ़ करे। जज़ाकल्लाह जी वंस अगेन, आप आए। अल्लाह हाफ़िज़।